अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले की बात है, एक 18 ईयर ओल्ड ओपीडी में आया, उसने मुझे दिखाया। आई वॉज नॉट कन्विंस्ड। मैंने बस कहा स्ट्रेस टेस्ट करा लेता हूँ, स्ट्रेस पॉजिटिव। उसका जब एंजियोग्राम किया गया, एंजियोग्राम में तीनों आर्टरी प्रॉपर थिन बिल्ट, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, ओनली वन कोमोर्बिडिटीज वाज देयर। उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था। कार्डियक पेन टिपिकल इज स्क्वीजिंग टाइप, दैट इज डिफ्यूज ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। रेडिएट हो रहा है प्लस डिफ्यूज पेन, नॉट पिन पॉइंट पेन। Pinpoint may be muscular pain, may be musculocutaneous pain, may be bone pain. Okay. But the squeezing, diffuse type of pain, radiation towards umbilicus or till jaw, associated symptoms उसमें आते हैं sweating होना। तो ये common symptom है जो कि लोगों को पता होने चाहिए। Cardiac arrest होता है जब heart stop beating, that is arrest। 3 arteries supply कर रही हैं हार्ट को, उसमें से किसी में भी blockage होगा, उस टर्मिनोलॉजी को हार्ट अटैक कहते हैं। आफ्टर हैविंग अ एपिसोड ऑफ हार्ट अटैक, दैट कैन आई एक्सरसाइज, कैन आई ट्रैवल, कैन आई एंजॉय लाइफ, देयर इज ऑलवेज दिस फियर दैट कैन आई लिव नॉर्मली अगेन। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जैसी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे वैसी ही एज इट इज़ जिएंगे। बेड रिडन नहीं रहना। बहुत से पेशेंट होते हैं कि बेड रिडन रहना, मुझे 7 दिन 10 दिन अब मैं लेटा रहूँगा, क्या करूँगा। नहीं। What was the lowest point during your journey where you are on your toes day in and day out? So this question is more relevant to ask you. It's very personal question. During MBBS, MD and DM all of same, बस पढ़ाई करो, काम करो, बस चलते चला गया। Before joining MBBS, When I was doing my preparation, 1 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी की, तीसरी साल तैयारी की, उसमें भी नहीं। Then I thought कि मैं अब इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ। Personally, which one you feel that you should follow, but you find it a bit difficult to follow? Hello everyone, and welcome to another insightful episode of Aska Virtue podcast, where we bring science, clinical wisdom, and real-world healthcare conversations together for doctors, patients, and caregivers alike. We all think we understand heart attacks until something really happens around us, and suddenly we realize we know nothing. We don't know the science, we don't know what to do, and most importantly, we don't know how to react in time. So today we are breaking all of that down. No complicated medical jargon, no fear, just real and practical clarity. And for that, we have someone who literally deals with this every single day, Dr. Anup Kumar Singh, cardiologist from Lucknow. He's a senior cardiologist at Medanta Hospital with expertise in interventional and non-invasive cardiology. Sir, it is such a pleasure to have you because I think this particular topic is so important. Yes, exactly. But somewhere we know it is important, but somewhere we know nothing about it. And that is the sad part. So I think today through this platform, we are trying to communicate to people at large in the simplest form. And I think coming from you who are dealing with it day in and day out. Yes. So I think exactly. We will do the same, like the common man understand how absolutely the chest pain, what is the heart attack, what is the things. Okay. So true. So that is the whole purpose. We want to reach out to a layman. A layman, yes. But exactly yes, how he can be helpful if he sees some cases like this around him. What they will do. Absolutely. What they can do there only. So true. So sir, thank you again for joining for this podcast conversation. Thank you for I will dive right into the first question. Yeah, sure. So that most of us have grown up watching movies with a heart attack that looks very dramatic. Yes. के सीधा छाती किसी ने पकड़ लिया है और वो कोलैप्स हो जा रहा है. But recently I've been hearing that real life heart attacks are often much more silent and very different, and honestly more dangerous because of that, because it is silent. So let me ask you this, what are the signs people are actually missing in real life? This is a good question जो आपने पूछा है कि जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि पेशेंट ने छाती पकड़ी और एकदम से बेहोश हो गया। राइट। ये भी एक बहुत ही एक सिम्टम होता है हार्ट अटैक का, लेकिन बहुत वैरायटी ऑफ हार्ट अटैक होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि सिर्फ चेस्ट पेन हुआ, रेडिएशन हुआ, जो कॉमन एक
90% या 60-70% पीपल में होता है, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन होता है, रेडिएट करता है, जॉ में जाता है, नेक में, दैट इज टिपिकल कंप्लेन कि Right. पेशेंट इज हैविंग दैट. राइट. लेकिन द सम काइंड ऑफ हार्ट अटैक, लाइक पेशेंट को दर्द हुआ, एकदम से बेहोश हो गया, दैट इज a rare form of the symptom कि patient present with the unconsciousness and Okay. patient was having heart attack. राइट. That is we judge in the ECGs कि राइट. which type of heart attack he is suffering or she is suffering from. ओके. Yeah. So for the common people, they have to understand the sign and symptom of the heart attack. So the symptom is typical whatever I told कि दर्द होगा, हाथों में जाएगा, गर्दन में जाएगा, अम्बलाइकल से लेके यहाँ तक का कोई दर्द, रेडिएशन जो जाता है हाथ में, वो कार्डियक पेन हो सकता है. ओके. पिन पॉइंट पेन अगर कोई इंडिविजुअल बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, बस एक जगह यहाँ हो रहा है, दैट इज 99% दैट इज नॉन कार्डियक. ओह. पिन पॉइंट पेन इज नॉट अ कार्डियक पेन. ओके. Cardiac pain typical is squeezing type, that is diffuse over the left side of the chest. रेडिएट हो रहा है. Radiate हो रहा है plus diffuse pain, not pinpoint pain. Pinpoint may be muscular pain, may be musculocutaneous pain, may be bone pain. ओके. But the squeezing, diffuse type of pain, radiation towards umbilicus or till jaw, associated symptoms उसमें आते हैं sweating होना. एक जो आपने फिल्मों वाली बात बताई, आदमी कोलैप्स कर सकता है उसमें, वो भी एक फॉर्म हो सकता है. ठीक है, तो ये कॉमन सिम्टम है जो कि लोगों को पता होने चाहिए आज के उसमें कि हमारे ये सिम्टम है और ये हमें आइडेंटिफाई है कि हाँ ये हार्ट अटैक हो सकता है. तो वी हैव टू गो फॉर सम कंसल्टेशन फॉर द प्रॉपर डॉक्टर, नॉट लाइक एनी डॉक्टर दे कैन गो. इफ दे अंडरस्टैंड कि हाँ दिस इज कार्डियक, दे हैव टू गो फर्स्ट देयर. वाओ. या So like if someone feels fatigue or slight discomfort, they'll just say, you know, let me just sleep off. तो वैसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए. I mean, since we don't know anything about it, Yes. so we should not self-diagnose. I think is the first thing. So Yes, any first thing. sort of discomfort, may it be typical pain as you are saying, yes. We should immediately consult. I Yes. think is And sorry for interrupt. One more thing. If night time, if any pain, and patient immediately wake up with I am having chest pain, that is less likely non-cardiac. That is mostly the cardiac pain. Because patient won't wake up other than the cardiac pain. So true. So true. So if any night emergency pain, they have to come to the hospital and check and get the ECG done that time. And some atypical chest pain. Atypical means the usual symptom is not present. Okay. Like the chest pain is not there. अच्छा. Now you are talking about the silent angina. Right. Silent features. Silent is what patient complain of only epigastric pain. Ah. Only. They will think this is gas. Right. 50, 60, 70% of individual in India is saying this is gas. Wow. All are saying, सर डॉक्टर साहब गैस बन रही थी तो मैं सोचा पेंटाप्रोजोल खा लूँ, ये हो जाएगा. वो आते हैं, फिर आते हैं लेट प्रेजेंटेशन में. तो पेशेंट विद एपिगैस्ट्रिक पेन, स्वेटिंग और रिकरेंट वॉमिटिंग, समटाइम कुछ ऐसे हार्ट अटैक होते हैं जिसमें प्रेजेंटेशन ही डिफरेंट होती है. एपिगैस्ट्रिक पेन, लूज स्टूल, वॉमिटिंग. ओह. Patient won't identify that. Absolutely. And that is most common in females. अच्छा. Diabetic patients, they don't have typical chest pain. They won't have. Right. They won't have typical chest pain. They'll only say epigastric pain. They'll say only muscular pain. I am having only weakness. That is also very unusual symptom of heart attack. Wow. Yeah. So ये सुन के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि I think any sort of discomfort, Yes. बिना self diagnose किए, let us reach out to the doctor is the Yeah, at least best you thing. have to get ECG done. If So ECG true. is normal, at least Sorry. there's no such sort of relief कि हाँ there's a normal thing, so we can go back and tomorrow morning we can and evaluate ourselves. I think that one important thing, you know, we should bring in our cultures, क्योंकि हो क्या जाता है कि ऐसा कुछ भी होता है तो सब लोग घर में डॉक्टर बन जाते हैं, जी, बिल्कुल बोलते हैं सही कि कहा सो आपने. जाओ या ये कुछ खा लो या गैस हो गई है, कुछ अपना आप से डायग्नोस मोस्टली करें. यही लोग कहते हैं. आई थिंक द बेस्ट थिंग वुड बी टू रीच आउट, ज़्यादा से डॉक्टर को कहने दो कि ये ठीक है, ये गैस था, वापस आ जाओ. यस एग्जैक्टली. But if you रात have में मैंने आपसे access, जैसे कहा कि रात में अगर कोई पेन ऐसा होता है तो यू हैव टू गो.
Absolutely. यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल कि वो रात में आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट किया, आप उठ के बैठ गए, आप स्लीप डिस्टर्ब हो गए उस पेन से, तो यू हैव टू गो देयर एंड गेट अ ECG डन. इफ इट एवरीथिंग इज फाइन, कम बैक अगेन. Very true. या तो दिस इज आई ओपनिंग, क्योंकि उसके रिप्रेजेंटेशंस आपने कहा Different कि variety of एब्सोल्युटली representation, डिफरेंट हाँ. हो सकते हैं. 100% So- patient won't get a typical squeezing of type pain, radiation to the arm or jaw. Right. No. Wow. Yes. So that makes it even more, you know, we have to be cautious. I think Cautious. that we need to reach Yes. out to the nearby Yes. medical facility. Wow. So now I'll go a little deeper. Yes. But let us keep it, very super simple for all Simple of for us. the common man. Absolutely. Yes. Because we hear the term heart attack all the time, but very few people actually understand what's going on inside the body. Yes. What exactly is happening inside the body during those critical minutes Of heart attack? So heart attack, basically the heart is supplied by 3 arteries. Mhm. Left side 2 arteries supplying the heart muscle. Right side 1 artery is supplying the heart muscle. Like all over the body, all muscles are supplied by some kind of arteries. Right. So हार्ट को भी खून चाहिए उसमें. तो हार्ट को 3 आर्टरी सप्लाई करती हैं. Okay. आयोटा से निकलती हैं, 2 लेफ्ट साइड में सप्लाई करती हैं, एक राइट साइड में सप्लाई Right. करती हैं. तो जब भी इसमें से किसी को ब्लॉकेज होगा Mhm. राइट साइड आइदर लेफ्ट साइड की किसी भी आर्टरी में, तभी पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे. Okay. तब जो सिम्टम आएंगे तो उसी सिम्टम से उसको ये पेन होगा या वट एवर डिस्कम्फर्ट आई टोल्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन की ये सिम्टम्स उसको प्रेसिपिटेट कर रहे हैं. इनसाइड उसको क्या होगा, उसका फंक्शन हार्ट का कम हो सकता है, क्योंकि जो एरिया उसको सप्लाई कर रहा है, आर्टरीज जो सप्लाई कर, राइट साइड वाली इंफीरियर वॉल को सप्लाई कर रही है, लेफ्ट साइड वाली एंटीरियर को सप्लाई कर रहा है हार्ट के. तो जिस एरिया में ब्लॉकेज, मान लीजिए लेफ्ट की 2 है, एक में ब्लॉकेज हुआ तो उस एरिया की सप्लाई बंद होगी, तो वहाँ का हार्ट का हिस्सा कम काम करने लगता है. Okay. इसके कारण कम काम करें तो पंपिंग भी कम हो जाएगी. Right. तो सिम्टम ऑफ चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑक्लूजन इन दिस पर्टिकुलर आर्टरीज. अच्छा. दैट इज कॉज चेस्ट पेन. Right. एसोसिएटेड सिम्टम इज लाइक जब पंपिंग नहीं करेगा तो ब्लड सही से जाएगा नहीं, तो ब्लड कहीं नहीं जाएगा तो वो सांस भी फूल सकती है उसकी. इनसाइड जो बॉडी हो रहा है, Right. किडनी में ब्लड नहीं जा रहा तो किडनी परफ्यूजन कम हो जाएगा, किडनी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है. ये सब चीज़ें एसोसिएटेड जो कि पंपिंग से एसोसिएटेड है, लेकिन जब ब्लॉक होगा वो टिपिकल चेस्ट पेन कॉज करेगा हमें. हाँ. Okay. So it is not just a pain event. It is literally the heart, getting cut off from all the supplies. Yes. Basically. The heart is not getting blood. Okay. The heart is not blooding it means that area of myocardium. We call it myocardium means muscle of the heart. Right. तो उसको सप्लाई नहीं जाएगी तो वो थोड़ी देर बाद जितना लेट होता जाएगा उतना वो डेड की तरफ चला जाएगा. Right. And अब this, अगर वो डेड हो गया तो वो वापस नहीं आएगा. right. And it starts affecting all the other organs Yes, also. if it because is pumping is reduced, sometimes patient come with normal ejection fraction, normal pumping is 55, 60, 65. Mhm. Once the heart attack, it become 40. Some people get 35, 30. It's depend upon the how much occlusion is there. Oh. How much occlusion, how much supply that artery gives to the muscle of the heart. जितना उसको सप्लाई कर रहा है उतना ही कट ऑफ होगा, उतना उसका फंक्शन कम होता चला जाता है बॉडी के. Okay. So I think that this pretty much clears the whole understanding कि हम लोग अगर बाहर से पेशेंट को देख रहे हैं तो क्या हमें फीलिंग होती है इन द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड नाउ एक्चुअली बॉडी के अंदर क्या हो रहा है. आई थिंक वो अलग चीज you है, have क्योंकि very rightly उसमें explained. बाहर से हम सिर्फ उसके सिम्टम और साइन देख रहे हैं, राइट. अंदर से हार्ट की पंपिंग कम हो रही है, ब्लड परफ्यूजन पूरी उसमें कम हो रहा है, राइट. जिससे और ऑर्गन, मल्टी ऑर्गन को डिसफंक्शन हो सकता है उस चीज़ से. वो अलग है, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं. प्राइमरली जो बंद हुआ है, दैट्स वाई जब भी ये चीज़ें होती हैं इमीडिएटली वी हैव टू डू समथिंग. So अदरवाइज इफ इट इज प्रोलॉन्ग्ड, अगर इसका टाइम बढ़ता चला जाएगा तो फिर उसको करेक्ट करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देन द मायोकार्डियम बिकम डेड. सो ट्रू. तो डेड में कुछ भी कर देंगे वो डेड ही रहेगा. Very true. Yes. Very true. So sir, people often use terms heart attack and cardiac arrest interchangeably. Yes. Like they mean the same thing, but they are actually very different, right? Yeah. So can you break down for us what is the real difference and why it is important to know in an emergency that what exactly is the difference between cardiac arrest and heart attack? That's very good question.
कि दोनों लोग सब, कोई कहते किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, किसी को कहता कि हार्ट अटैक पड़ गया, डॉक्टर साहब इनको हार्ट अटैक आ गया, इनको कार्डियक अरेस्ट। लेमैन ऐसे ही, कॉमन पीपल ऐसे ही यूज करते हैं इंटरचेंज, कोई कार्डियक अरेस्ट कहता है, कोई अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होता है जब हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। अच्छा, हार्ट स्टॉप बीटिंग, दैट इज अरेस्ट। हार्ट अटैक, आई टोल्ड यू 3 आर्टरीज सप्लाई कर रही हार्ट को, उसमें से किसी में भी ब्लॉकेज होगा, उस टर्मिनोलॉजी को कॉमन मैन हार्ट अटैक कहते हैं। इन 3 आर्टरी में किसी को अगर अटैक पड़ा है, एक आर्टरी बंद हुई तब हार्ट अटैक, दूसरी आर्टरी, कोई भी आर्टरी बंद हुई, दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अच्छा, आपकी तीनों आर्टरी बंद या 2 आर्टरी बंद गई, अरेस्ट में चला गया हार्ट, राइट, हार्ट पंपिंग करना बंद, एकदम जीरो, हार्ट रेट जीरो हो गई। तो हार्ट अटैक इज अ कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी की आर्टरी बंद हो रही है, उससे वो अरेस्ट में जा रहा है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। मल्टीपल फैक्टर हैं कि कार्डियक अरेस्ट किससे, हार्ट बीट मतलब हार्ट पंप करना बंद कर दे, हार्ट स्टैंड स्टिल हो जाए, तो वो कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। इसमें हम लोग इमीडिएटली वी हैव टू स्टार्ट CPR, थम्पिंग ऑफ द चेस्ट, ये सब देने लगते हैं कि हम हार्ट बीट फिर से उसको पंपिंग लाएं कर सकें। जी। लेकिन हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता है। राइट, हार्ट में हमें, वो तो पेशेंट अलाइव है, हार्ट बीट चल रही है, आप ECG देख रहे हैं, ब्लॉकेज उसमें तो ब्लॉकेज है, उसको बस हमें ब्लॉकेज खोलना है, दैट इज हार्ट अटैक, लेमैन लैंग्वेज। ओके, कार्डियक अरेस्ट के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, उसमें से एक कॉज हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, ये द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो सर, एम आई राइट इन सेइंग के जैसे इलेक्ट्रिसिटी चला गया और मशीन बंद हो गया, इट इज सिमिलर टू दैट? हाँ, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें कि इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई और एकदम से मशीन बंद हो गई, अब उस मशीन को चलाने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी लानी पड़ेगी आपको। राइट, अब भाई वो आर्टरी खोल के लाएं हम, या हम वो CPR दे के लाएं, या जो भी उसका कॉज हो उसको ट्रीट करके लाएं। ओके, दैट इज अ डिफरेंस। तो सर इतना वास्ट डिफरेंस है, और यू नो एज अ लेमैन हम जब भी जो मन आया वो बोल कह दिया, देते हैं, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, बट I mean, in reality, these are such two different things. different things. This two, cardiac arrest is the last stage. Right. Cardiac arrest हुआ means सब चीज बंद हो गई So- आपकी, तो you have to revert it back by the CPR or by the precipitating factor. Okay. So sir, we have also heard this term, the golden hour. The golden hour, yes, exactly. But I feel people hear it but don't fully understand what actually it is. So let's say someone around me is having a heart attack. Yes. And I have zero medical training. I'm just a normal person. How important is that first hour, and what exactly should I do in that moment? If you are having if I am having a chest pain, and I know that is typical chest pain, like starting squeezing type of chest pain, रेडिएट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमें स्वेटिंग आ रही है, हमें पता लग गया चेस्ट पेन है, इमीडिएटली यू हैव टू गो। गोल्डन आवर्स मीन्स वी हैव टू इंटरवीन इन दैट पर्टिकुलर आवर। अच्छा, आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि इफ डिलेइंग इन इंटरवीनिंग इन दैट, अगर हम डिले कर रहे हैं उसमें, तो मायोकार्डियम डेड होता चला जाता है। कार्डियक अरेस्ट की तरफ कार्डियक अरेस्ट नहीं, वो हिस्सा मायोकार्डियम का डेड हो जाएगा। अच्छा, ओके। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्डन आवर्स। अगर उस घंटे में अप टू, अभी तो हो गया कि अप टू 24 आवर्स तक हम अगर इंटरवेंशन कर लेते हैं, तो हम उस हिस्से को सेव कर लेते हैं। दैट विल रिटर्न बैक in future, not immediately, but in future it can revert back. Whatever function loss, maybe it can, not 100% patient can achieve that thing, but maybe we are having hope ki if we are open within 24 hours, then it will return back to the normal. If it is beyond 24 hours, so we have to check lot of other tests कि वो मायोकार्डियम वायबल है, हाइबरनेटिंग है, दैट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म कि उसमें मतलब मेनली हम लोग टेस्ट करते हैं कि 24 घंटे हो गए किसी को MI हुए, वो सर्वाइव कर रहा है, अब उसका हमने एंजियो किया, उसमें ब्लॉकेज मिल गया हमें 100%, ठीक है, अब 100%, लेकिन वो एरिया तो अभी काम नहीं करा जहाँ पे वो सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब उस एरिया को हमें स्टेंट नहीं, ऐसे बस 24 घंटे हो गए हमें स्टेंट डाल के उसको खोल के कोई मतलब नहीं होगा, तो हमें उस हिस्से का टेस्ट करना पड़ेगा कि ये अगर हम ये खोलते हैं तो ये वायबल होगा कि नहीं आगे चल के। अगर इट इज डेड, देयर इज नो पॉइंट पुटिंग ओपनिंग एनी स्टेंट और एनी बाईपास इन दिस टाइप ऑफ ब्लॉकेज। अच्छा, तो दैट इज
a golden hour, you call it golden hour. 1 hour is called as golden hour. Right. The first hour is very important. लेकिन up to 24 hour we are saying, in our literature we are saying कि हाँ 24 hour के अंदर में अगर आ जाता है कोई भी चीज़, तो maybe the myocardium can be saved. After 24 hours, there is a chance. Difficulty नहीं, अगर 100% है तो we have to check before opening this thing. फिर चाहे अब पौधा सूख गया है, अब उसमें जान नहीं बची, अब कितना भी उसको खोल के हम पानी डालते रहें, पानी डालते रहें, वो पौधा कभी वापस नहीं आएगा. उसमें नाली बना दें, पानी जा रहा है, मट्टी एब्जॉर्ब कर रही है, मट्टी ही रह गई, वो एक मिट्टी ही रह गई जो एब्जॉर्ब करे जा रही पानी, वो एरिया फिर वापस नहीं आएगा इफ इट इज डेड. Right. So we have to test that कि if it is viable. If it is viable, then there is a chance कि हम intervene करें उसमें उस 100% blockage को, तो वो आगे चल के क्या पता improve कर जाएगा. So that is the concept of that. Wow. So like, no, honestly, we learn so many random things in school. Yeah. But nobody teaches, this basic. I mean, this is so important because in that moment, you don't need to be a doctor. You just need to act fast and act right. Yes. Is what I understand from what you're saying. And what you said about, not delaying, that's probably the biggest takeaway. Yes. So we need to make sure that we reach out at the earliest possible. And That not is the main- self-diagnose. हाँ, not self-diagnose. This is gas. ये गैस का दर्द है, हम दवाई खा लें, या हम ये कर लें, कल चले जाएंगे. अगर टिपिकल आप आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत अवेयरनेस आ गई है, पहले नहीं थी. अभी जो सोशल मीडिया में अब लोगों को पता होता, तो अभी तो तभी लोग आ जाते हैं. Right. तो उनको जरा सा भी कुछ हो, there is mostly non-cardiac lot of kind, but they are coming. So true. But prevention is always better. हाँ, तो वो आके कम से कम एक ECG करा लेते हैं कि देख लेते हैं, हाँ सही है, डॉक्टर साहब ने कह दिया सही है तो सही है, चलते हैं बस. Right. तो सेंस ऑफ रिलीफ हो जाता है उनको. नहीं, that is very important, I think. तो पहले ये सब था नहीं कि सोशल मीडिया था कि ये नहीं, पहले बस हाँ ठीक है कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, Right. आज हम ये काम कर लेते हैं. So true. ये होता है. नहीं सर, आई मीन आपने जो कहा उसमें एक फैक्टर ये भी है कि पोस्ट कोविड इतने सारे केसेस भी हमें सुनने को मिल रहे हैं कि पीपल हैव बिकम समवेयर डीप डाउन अ बिट अफ्रेड के आई नीड नॉट एक्सर्ट मच, कुछ हुआ तो क्या होगा. यंग पेशेंट्स में भी ऐसा हो रहा है. सो इन अ वे अवेयरनेस, फियर और अवेयरनेस में बहुत डिफरेंस है. अवेयरनेस एंड फियर, वन इज फियर आफ्टर कोविड, फियर भी बढ़ा है राइट हेल्थ के प्रति. दूसरा अवेयरनेस में क्या कुछ भी होता है उनको तो लगता है कि पहले दिखा लें. बिफोर कोविड एरा कुछ नहीं, यंग पेशेंट को हम लोग भी नहीं सोचते थे कि ये 31 साल का आ रहा है, ये 28 साल का आ रहा है, इसको चेस्ट पेन हो रहा, तो हम क्या करेंगे. अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले की बात है, एक 18 ईयर ओल्ड मेल, वो ओपीडी में आया, उसने मुझे दिखाया, उसका मैंने बस ऐसे आई वॉज नॉट कन्विंस कि इसको ये वो है. तो मैंने बस कहा स्ट्रेस टेस्ट करा लेता हूँ. मैं यूजुअली स्ट्रेस पॉजिटिव मींस पॉजिटिव में स्ट्रांगली पॉजिटिव. दैट 18 ईयर ओल्ड गाय, उसका जब एंजियोग्राम किया गया, एंजियोग्राम में तीनों आर्टरी बंद. द 18 ईयर ओल्ड बॉय. ओह माय गॉड. और ऐसा नहीं, उसको प्रॉपर थिन बिल्ट, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, ओनली वन कोमॉर्बिडिटीज वाज देयर. उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था, वो फैमिलियल. अच्छा. उसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग. दैट फिर हम लोगों ने रेट्रोस्पेक्टिवली उसका वो डाटा निकाला. वाह. तो दैट इज all 3 blockages, 190%, 195, 100%. That and I was surprised that time. But I think it must be because of, as you said, strong genetics. Yes. So that is the one factor in that case. Because no other risk factor were there. Only cholesterol and family history. Wow. I mean, hearing this out, I genuinely feel कि कुछ भी हो तो एक बार कंसल्ट करना चाहिए. Absolutely. So now सेल्फ डॉक्टर नहीं बनना. Absolutely. Irrespective of age now. Yes. ऐसा भी नहीं है. That's the main thing. कि अब मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किसी भी चेस्ट पेन को लाइटली नहीं लेता. पहले मैं ये कहता था हाँ ठीक है कुछ नहीं होगा, तुम 30 साल में क्या ही चेस्ट पेन बता रहे हो मुझे. तो अब ये लाइटली नहीं लिया जा सकता. वाह. सर जब भी हम एक रिपोर्ट ओपन करते हैं एंड सडनली नंबर्स आ जाते हैं, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स, नंबर्स एवरीवेयर. मोस्ट पीपल डोंट इवन नो व्हाट इज गुड और बैड.
So can you give us a simple cheat sheet, like what numbers actually matter, Yes. जो हमें देखने चाहिए, what is dangerous and what should people aim for? Okay. A very good question. This is very good for the common people also. Because जो नॉन मेडिकोज हैं, जो और भी लोग जो इस पॉडकास्ट के लिसनर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सब कोई भी चीज़ होती है, लोग सर मेरा लिपिड नॉर्मल है, सब आ जाता है लिपिड नॉर्मल है। नॉर्मल हर एक इंडिविजुअल का वेरी करता है। अब आपने कहा बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल हम लोग कहते हैं एलडीएल को, दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल। उसको कम हो या ज़्यादा, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई दवाई नहीं देते, उसकी कोई दवाई आती ही भी नहीं। अच्छा। कि हम कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा दें और बैड कोलेस्ट्रॉल उतना ही रखें तो कुछ हो जाएगा, नहीं। गुड कोलेस्ट्रॉल अपना ऐसे ही रहता है बॉडी में, जो है अपने घटता बढ़ता रहेगा, उससे हमें कंसर्न नहीं है। एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, राइट। वी आर मोर फोकसिंग ऑन टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल, स्पेशली एलडीएल। नाउ-अ-डेज सारी हमारी लिटरेचर, जितनी भी लिटरेचर है, जितनी हमारी एसोसिएशन है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो यूरोपियन है, जितनी भी एसोसिएशन है, फोकस्ड ऑन एलडीएल। दैट इज द मेन कल्प्रिट फॉर हार्ट अटैक, राइट। मेन कल्प्रिट। तीसरा एक और चौथी एक एंटिटी होती है ट्राइग्लिसराइड। ठीक, सबका कट ऑफ अलग अलग आता है, हर रिपोर्ट वेरी करती है, हर लैब की रिपोर्ट वेरी करती है। तो एक टेंटेटिव चीज़ मैं बता दूं, किस पे एक कॉमन मैन को वरी होना चाहिए, दैट ही शुड कंसर्न अ कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल का तो कुछ करना नहीं, दैट इज वेरी क्लियर। नहीं, अब एलडीएल का आता है बात। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, उसको अपना एलडीएल 100 से नीचे रखना है। एक कॉमन है, एक वो है कि हम बेंचमार्क है कि 100 से नीचे रहेगा, एवरीथिंग इज फाइन, राइट। किसी को डायबिटीज है, रिस्क फैक्टर डायबिटीज है, 40 साल से ऊपर है, उसको 70 से नीचे रखना है हमको। ओके, ठीक है, इरिस्पेक्टिव उसका नॉर्मल भी हो जाए, तभी भी उसको एक लिपिड लोअरिंग दवाई लेते रहना चाहिए। ये हमारे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहता है ऐसे, राइट। कि 40 साल का है, अगर उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल को हम लोग एलडीएल टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, अगर वो नॉर्मल भी है तभी एक स्मॉल डोज में लिपिड लोअरिंग ड्रग लेता रहेगा। वो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, आगे के लिए, क्योंकि डायबिटीज़ में ये सब चीज़ें अंदर चलती रहती हैं, वो कब कॉज कर देंगी नहीं पता किसी को। तीसरी चीज़ होती है, एक तो नॉर्मल में 100 से नीचे हो गया, डायबिटीज़ में 70 से नीचे हो गया। एक होता है जिनको मान लिया अटैक पड़ा, उनका हमने स्टेंटिंग भी कर दी या बाईपास भी हो गया, मान लिया दो ही चीज़ें होती हैं रिवास्कुलराइजेशन का, आइदर स्टेंट, वी आर डूइंग स्टेंट डाल दिया, या किसी सर्जन ने बाईपास कर दिया। अब उनका कट ऑफ डिफरेंट होगा। अच्छा, ठीक है, वो कहते हैं कि सर हमारा 70 चल रहा है, 70 नॉर्मल है, नॉर्मल इंडिविजुअल नॉर्मल है वो, लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल नहीं है हमारे लिटरेचर के हिसाब से। अच्छा, अगर किसी का बाईपास हो गया है या किसी का भी वो हो गया है, स्टेंट पड़ गया है, तो उनका कट ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन के हिसाब से 55 से एलडीएल नीचे होना चाहिए। ठीक है, 55 इज अ कट ऑफ, लेस देन 55 एनी हाउ वी हैव टू कम डाउन बिलो 55। ओके, दैट इज फॉर द। लेकिन अगर इंडियन, हमारी जो लिपिड गाइडलाइंस इंडियन की अलग बनती हैं, क्योंकि हमारा अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर्स है, तो इंडियन गाइडलाइन कहती है कि हम 30 से नीचे रखें। वाह, ठीक है, अगर किसी को रिकरेंट अटैक हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, मान लिया हमें एक बार हुआ, हम सही चल रहे थे, सब कुछ कोलेस्ट्रॉल भी 55 पे मेंटेन कर रहे थे, उसके बाद भी अटैक पड़ गया, तो वी हैव टू कट ऑफ लेस देन 30, लेस देन 15। अब गाइडलाइन कहती है जितना लो हो पाए उतना रख लो, तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। 55 से तो नीचे रहना ही चाहिए, मतलब अगर मोटा मोटा हम कहें 55 से नीचे जिसको भी रिवास्कुलराइजेशन थेरेपी दी जा चुकी है, आइदर थ्रू स्टेंट या बाईपास, उसका 55 से नीचे एलडीएल होना ही चाहिए। ओके, ठीक है, रही बात अब एक चौथा जो आता है ट्राइग्लिसराइड, इसमें भी लोग बहुत ही वरी करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कंसर्न इसी की करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड सर हमारा बहुत बढ़ रहा है। तो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा, मतलब 200-250 से हम लोग वरी नहीं होते, क्योंकि वो उसके लिए दवा भी नहीं दी जाती हमारे इसमें। लेकिन कुछ पेशेंट बहुत, अब 300-350 हो जाए तो हम लोग दवाई इसकी स्टार्ट करते हैं यूजली। इसका साइड इफेक्ट मिलने का, जितना भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है वो हार्ट पे इतना ज़्यादा, जितना मान लो 500, 600, 700 पहुँच गया ट्राइग्लिसराइड, पहुँच जाता है, कुछ लोगों का 1000 भी पहुँच जाता है, तो वो हमारे हार्ट पे इतना असर नहीं डालेगा जाके, वो हमारे पैंक्रियाज पे असर डालेगा।
वो अच्छा। acute pancreatitis कॉज करा सकता है। ओह, तो इसलिए वो ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमें कम करना होता है कि वो acute pancreatitis इन फ्यूचर ना कॉज कर दे। तो दैट्स वाई whenever it goes beyond 300 then we have to start drug for the lowering down of triglyceride। अच्छा। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट कि हमें LDL एक कॉमन के 100 से नीचे रहना चाहिए, डायबिटीज 70 से नीचे रहना चाहिए। अगर किसी को रिवर्सकुलराइजेशन थेरेपी हो चुकी है तो 55 से कम एनी हाउ होना चाहिए उसका, ये LDL का। और मेनली फोकस किसी कोई भी अपनी रिपोर्ट कराए तो उसको मेनली फोकस LDL पे होना चाहिए, वही हमारा मेन कल्प्रिट है जो कि हार्ट अटैक से रिलेटेड होता है। ओके। तो सर ये 4 चीज़ें तो आई थिंक मोर और लेस जो आपने काफ़ी डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा सर हम लोग 2-3 चीज़ सुनते हैं व्हेन इट कम्स टू लिपिड प्रोफाइल और समथिंग रिलेटेड टू हार्ट एंड टेस्ट रिलेटेड टू जी। 2 things which come out sometimes very prominently, and I think more so in, I'm not too sure, but more so maybe in metros, I don't know, I may be wrong. That is about lipoprotein A and homocysteine. यस, होमोसिस्टीन इज अ रिस्क फैक्टर। होमोसिस्टीन के लिए हम कुछ नहीं करते कि होमोसिस्टीन एक जैसे हमारे कार्डियक रिस्क फैक्टर होते हैं कि हम जो पूछते हैं कोई अटैक करके आया, पेशेंट हार्ट अटैक करके आया, उसको हुआ, तो हम उसके रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है, इज़ ही और शी स्मोकर, होमोसिस्टीन क्या है उसका, ये हम लोग टेस्ट कराते हैं। नॉन यूजली सबका नहीं कराते हैं। अगर होमोसिस्टीन हमारा हुआ भी, मान लिया बढ़ा हुआ या घटा हुआ, तो उसके लिए हम लोग की फोलिक एसिड ड्रग्स होती हैं जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, कोई रिस्क फैक्टर में रहता है। अब हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा, वो भी एक रिस्क फैक्टर है इनडायरेक्ट वे में हार्ट का। राइट। लेकिन मेजर जो 4 रिस्क फैक्टर हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल, फैमिली हिस्ट्री, ये मेजर चंक है। ट्रू। ठीक है। और जो लाइपोप्रोटीन ए की बात की है, ये अभी एक रिस्क फैक्टर है, इमर्जिंग रिस्क फैक्टर, जो पहले भी है, लेकिन ये अभी ज़्यादा उसमें आ गया है कि ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर लाइपोप्रोटीन ए किसी का बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे उसको अटैक होने के। इसके लिए भी लोअर लिपिड लोअरिंग ड्रग्स आती हैं, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में आती हैं जो कि इसको कम करती हैं। लेकिन इसमें वेरिएबिलिटी भी बहुत होती है। एक इंडिविजुअल का, किसी का नॉर्मल है तो वो लैब टू लैब वेरी में भी कर सकता है। तो उस पर एकदम से नहीं होना। किसी का अगर LPA बहुत बढ़ा गया तो एकदम वरी हो जाएगा कि अब डॉक्टर साहब मेरे क्या अब कल ही हार्ट अटैक ना पड़ जाए मुझे, वो सोच सोच के ना हार्ट अटैक पड़ जाए उसको। तो ये भी एक फोकस में रखना कि एकदम से LDL किसी का ज़्यादा है तो एकदम से हार्ट अटैक नहीं पड़ना है किसी को। लोगों को चेस्ट पेन होता है, वो ट्रोपाई नहीं कराएंगे, वो लिपिड करा लेंगे। सर मैंने लिपिड कराया था ये। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है, किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो लिपिड करा लिया सर मैंने। राइट। तो ऐसा नहीं कि LDL से ही वो हार्ट अटैक अभी हो गया। LDL का मतलब वो डिपॉजिट हो रहा है, उसने नैरोइंग एकदम से कर दिया। राइट। हाँ, ठीक है, सो इम्पोर्टेंट। सर इससे और एक क्लू मुझे एक चीज़ याद आ रही है जी। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पैरेलल थियरी चल रही है। क्या? एक मैसेज बहुत ही फेमस हो गया है कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का कोई लिंक ही नहीं है। नहीं दैट इज वेरी रॉन्ग थ्योरी। जिसने भी फैलाई है ये बिल्कुल ही रॉन्ग थ्योरी है कि उसमें कोई मेन कॉज ही हमारा ये है डिसलाइपिडीमिया इज अ मेजर रिस्क फैक्टर। एक मेजर माइनर रिस्क फैक्टर होते हैं। तो डिसलाइपिडीमिया, हाइपरटेंशन, टाइप 2 DM, फैमिली हिस्ट्री मेजर रिस्क फैक्टर हैं हमारे जो कार्डियक के हैं। उसमें लिपिड में LDL इज अ मेजर रिस्क फैक्टर क्योंकि वही डिपॉजिट हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में। ये सारी चीज़ें लीवर से बनती हैं, लीवर से ही डिजनरेट होती हैं। तो यही डिपोज जब इनकी एबनॉर्मलिटी आती तो यही आर्टरीज फ्लो कर रही हैं, उसमें धीरे धीरे डिपोजिशन होता रहता है। कुछ में होता है हार्ट अटैक ग्रेजुअल नैरोइंग से हो रहा है और वहीं से कोई टुकड़ा टूका उसने आगे ब्लॉक कर दिया। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड हार्ट अटैक। राइट। So I think this was actually very important to clear. I mean, so that is your WhatsApp theory is totally wrong. Exactly. I am not saying that is कि whoever is following that please don't follow कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का कोई लेना देना नहीं है। I so that is agree to directly this. related. And I think that is why, sir, such platforms are so important where we get to hear the exact things from the experts and we just don't believe to some random forwards which come in. Yes, that's the main thing कि social media is good as well as bad also. Very true, very true. So, sir, there's always this fear
that, can I live normally again after having an episode of heart attack? That can I exercise? Can I travel? Can I enjoy life? So, sir, after someone recovers from a heart attack, what does their life actually look like? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों का ये होता है। सारे मेरे पेशेंट अगले दिन जिनको डिस्चार्ज करते हैं यही क्वेश्चन होता है, Right. अब मैं घर जाके क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जैसी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे वैसी ही एज इट इज़ जिएंगे। हाँ. कुछ प्रिकॉशन में ये रहेगा कि डाइटरी प्रिकॉशंस आ जाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाएगा Right. कि आपको डाइटरी प्रिकॉशन में सारे हेल्दी फूड्स लेने पड़ेंगे। ये नहीं जैसे आप खा रहे थे वैसे ही आपको खाना है। Right. बस एक्सर्शन थोड़े दिन अवॉइड करने की, हैवी एक्सर्शन नहीं करना है थोड़े दिन के लिए, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअल आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स अपना नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाएंगे। कोई भी पेशेंट हमने डिस्चार्ज किया, हम नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। किया किसी का रिवेस्कुलेशन स्टेंट डाला हमने, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। वो अपनी रूटीन एक्टिविटी में टहलने जाना है, अगले दिन से टहलने जा सकता है। हाँ. साइकिल चलाना चाह रहा है, ये नहीं कि वो पूरा फर्स्ट आना है उसको साइकिल चला के आराम से अपना मूव कर सकता Without है। exerting बेड रिडन much. नहीं रहना। बहुत से पेशेंट होते हैं कि बेड Right. रिडन रहना, मुझे 7 दिन 10 दिन अब मैं लेटा रहूँगा, क्या करूँगा। नहीं, ही शुड स्टार्ट रूटीन एक्टिविटी फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड। हम लोग जब घर भेजते हैं वहीं पे ही अपने ही आईसीयू में या वार्ड में चला के ही भेजते हैं उनको, कि इतना उनको चलना ही है घर पे। अपने आप वॉशरूम जाना है, ये नहीं 4 लोग पकड़ के ले जाना, नहीं, अपने आप ही खाना लेना है, अपने आप ही ये करना है, सब अपने आप ही करना है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी आपको। बस हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको वॉक करना है, वॉक स्टार्ट कर दीजिए। आपको जैसे जैसे टाइम जाएगा अपनी वॉक बढ़ा दीजिए। अपना फूड थोड़ा सा सुधार लीजिए, जो भी पहले खाते थे उससे थोड़ा सा कम कर देना है। ऑयली फूड अवॉइड करने हैं, फ्राइड फूड अवॉइड करने हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना है। ये सब चीज़ें अगर लाते हैं तो नॉर्मल लाइफ जैसे पहले बिफोर रिवेस्कुलेशन था, बिफोर हार्ट अटैक जी रहे थे, वैसे ही नॉर्मल लाइफ वो चलते रहेंगे। उसमें कोई चीज़ नहीं चेंज होने वाला उनकी। This is such a relief and very reassuring for people who are recovering from a heart attack. So I think that is very, very important. Coming from you, it gives such a big relief. Sir, I want to ask you something which is very personal. What was the lowest point during your journey where you genuinely felt like maybe I can't do this, and what helped you push through that phase? Why I'm asking you in particular, because I know that what struggle it takes and what dedication and discipline it takes to reach the place where you are today. I mean, such a high stress branch in which you are into, where you are on your toes day in and day out. So this makes this question is more relevant to ask you. That's very personal question कि कहाँ पे मेरा lowest point था। During MBBS, MD and DM all of same, बस पढ़ाई करो, काम करो, बस चलते चला गया। Before joining MBBS, I'm talking about. अच्छा. When I was doing my preparation for that time NEET was not there, only CPMT was there, PMT was there. Right. 1 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी की, तीसरी साल तैयारी की, उसमें भी नहीं हुआ। अच्छा. देन आई थॉट कि मैं अब इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ, मैं शायद ये नहीं कर पाऊँगा। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अब आगे इसमें नहीं जा सकता। अच्छा. तो एक ही पुश था मेरे पास मेरी मदर का कि एक लास्ट ट्राई मेरे लिए कर लो, ये लास्ट ट्राई कर लो, नहीं होता है फिर जो तुम्हें करना है करना है। वाह. तो वो लास्ट पुश था जो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, कि अगर वो लास्ट चांस मैं उनके कहने पे ना देता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। वाह. क्योंकि आफ्टर 2 इयर्स वो मैंने छोड़ दिया था कि मैं अब नहीं करना चाहता, मैं कुछ और फील्ड में चला जाता हूँ। उन्होंने कहा लास्ट टाइम एक बार देख लो करके, अगर नहीं होता तो जो तुम डिसाइड करना वो कर लेना जाके। अच्छा. और फिर उसी साल वो चीज़ हो गई, तो आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। क्या बात है. So that is mother's blessing. Yes, which has got you here. I mean, very important for all our viewers to understand that for a doctor, the life and the journey is not very rosy each and every time. It is, everybody goes through that ups and downs, but you have to face it, with being so much brave and make sure. And at the end of the day, things do fall in place. Yes. So,
And I also have to ask you this, and you have to be very honest. Yes. You give health advice to patients day in and Exactly. day out. Daily basis. But personally, which one you feel that you should follow, but you find it a bit difficult to follow? Frankly And how you speaking, have simplified that to make sure that frankly speaking, whatever we advise, give to the patient. you. 50 to 70% we are not following. Because there's a lot of factors. I कि agree. why we are not able to follow that. Yeah. Because sometimes we think that we'll go to the gym, we'll go for the walk, Hmm. or we'll go do some exercise a lot. But due to the commitment for the So work, true. So true. वो चीज़ नहीं कर पाते हैं. Very true. ठीक है, जब टाइम मिलता है तब करते हैं. वॉट एवर वी स्पीक टू द पेशेंट कि हमें इतने मिनट दौड़ना है डेली, इतने मिनट चलना है डेली, Yeah. वी आर नॉट एबल टू फॉलो दैट. Hmm. We want to follow that, but we Right. are not able to follow that. There's a difference. True. So, मैं अभी भी कहूँगा सबको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए. रेगुलर एक्सरसाइज अपनी हैबिट में लाएं. Right. 5 दिन करें, 2 दिन ना करें, आपका सैटरडे संडे ना करें. 5 दिन कम से कम 150 मिनट आप वॉक करें. Hmm. ये करें पूरे एक हफ्ते में. एरोबिक नहीं, आप हैवी, हम नहीं कहता हूँ किसी को जिम जाके वो जिम करे जाके. अपना एरोबिक एक्सरसाइज करे, लाइट एक्सरसाइज करे. दैट इज मोर देन इनफ. हेल्दी लाइफस्टाइल में फूड का सबसे बड़ा रोल है. अगर वो फ्राइड फूड, Avoid. ऑयली, स्पाइसी, Hmm. नमक, ये सब कम कर देगा. इसी से उसका आधा चीज़ सही हो जाएगा. Right. शुगर कट डाउन कर दे. True. तो ये अगर हेल्दी लाइफ अपना लेगा तो ये जो डिसीज़ आजकल ये यंग्स में आ रही हैं, Hmm. मैंने कहा था स्मोकिंग, अल्कोहल इज़ द बिगेस्ट फैक्टर. तो ये अगर कम, मतलब एकदम से कोई नहीं छोड़ सकता, Yeah. तो रिड्यूस करके छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है. तो ये चीज़ें जो आज हो रही हैं वो शायद 10, 12, 15 साल बाद होंगी जाके. True. तो कम से कम वो लाइफ ईयर सेव कर सकते हैं So true. अगर ये सब चीज़ें हम अभी से शुरू करते हैं, लाइफ स्टाइल में ला लें अपने. तो Very true. जी. So I think even doctors are human at the end of the day. But I think what matters is awareness and trying to improve consistently, is what matters the most. So sir, as we come towards the end of this incredible conversation, let me tell you that this was indeed so valuable personally for me, because there are so many take home which I am taking personally for myself from this conversation. Honestly, this is not just about a podcast episode. This is something people should share with their families, because the biggest takeaway for me is simple: awareness saves life. Timely action saves life, and conversations like this can make the difference. So thank you so much, sir, for your time. Thank you. Sparing out so much time. I'm sure that you've been running so busy. I know how the schedule was. Yes. But still taking out time for all our viewers. Thank you so much. Thank you.